Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to discuss chapter number 5, agriculture. In the previous chapters we have to read about the importance of various resources like land, soil, water, plant, etc. In this chapter we will study about the agriculture and its importance for mankind. It means we have to say that agriculture is also a resource for us. We know that food is the basic requirement of the human being for their survival. It means for the survival of the human being, food is the basic requirement. This requirement of the food has led to the development of agriculture. Earlier human beings were dependent upon food gathering, hunting and fishing for their survival. You have to remember that in class 6 in ancient history we already read that human being is known as a food gatherer or hunter. फूड गैदरर एंड हंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बींग को डिनोट किया जाता था एंसेंट हिस्ट्री के टाइम पे. बट लेटर ऑन ह्यूमन बींग चेंज इनटू फूड प्रोड्यूसर. Gradually they started growing crops along the river valleys which led to the beginning of agriculture. It helped ancient civilization to flourish along the river valleys. Agriculture means cultivation of land. In simple terms, agriculture is cultivation of land. But in modern times, in wider terms, agriculture is the science and art of raising crop, rearing of livestock, forestry and fishing. All these are included in agriculture. And come on to the next, importance of agriculture. Importance of agriculture. Most of the population of the world still depends on agriculture for its livelihood. It is a major occupation of people in the developing countries of the world. It means in the developing country or for the developing country, agriculture is the main occupation, and most of the people depend upon agriculture for their livelihood or for their sustaining of life. India is an agricultural country, hence it is the backbone of our country's economic development. It is for India that agriculture is the backbone of our economic development. Agriculture not only supplies food to the people, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, agriculture supplies food to the people. दूसरा यहाँ से चेंज करेंगे, it also creates huge market for tractors. Also हटा देंगे, it creates huge market for tractors, threshers, harvesters, fertilizers, pesticides and other industrial products. It helps in third point, it helps in providing employment, eradicating poverty, enhancing trade and earning foreign exchange. Next is agriculture also plays an important role. It means also agriculture plays an important role in strengthening global relations by encouraging international trade of agricultural products. If the question asked from this section that write down the importance of agriculture, if the question will ask in 3 marks, then write 3 points, or in 5 marks question, then write 5 points. Okay. So next is, it helps in providing employment. It means agriculture also provide employment, eradicating poverty, remove poverty or reduce poverty, enhancing trade relation with the other country, then it is known as foreign exchange. If our trade relation with the other countries, then this relation is known as foreign exchange. Agriculture also plays an important role in strengthening global relation. Global relation means a relation of a country with more country by encouraging international trade of agricultural products. Next is factors affecting agriculture. The factors which affect agriculture. There are two types of factor, physical factor and economical factor. In physical factor we have 3. First one is relief, second one climate, and third one is soil. Agricultural development is possible only in certain region of the world. It is influenced by the various physical and economic factors. It is not necessary that agriculture is developed in all the country.
Most of the country are facing desert like structure or desert like problems. That's why agriculture did not proceed in such country. So what are the factors which affect agriculture? First one is relief. What is the meaning of relief? Relief is also known as landforms. Plains are more suitable for agriculture than the highlands. Both are landforms. Plains, highlands, plateaus, coastal region, desert areas, all these are including landforms. All the mountains are also in relief features. Density of population is generally high in plain. Density of population is generally high in plain. Why density of population generally high in plains? Density of population is generally high in plains because of the facilities or the suitability over this area. This helps in providing cheap labor and market for farm products. Obvious, if the population are dense in any areas, cheap labor and market for farm products are easily available. Moreover, it becomes easier to use modern equipment on plain region, whereas it is difficult to use machine on rugged topography. The river basin and deltas are more suitable for agriculture than mountainous region. Why? Because of the river basin and the deltas, the areas are more fertile, then it is more suitable for agriculture rather than mountainous regions. Second point is climate. Agriculture is highly sensitive to climate variability. Agriculture is highly sensitive, or agriculture also affected with climate variability. How? Each crop has its own requirement of temperature and rainfall. That is why the variation in climatic conditions support different crop patterns. For example, wheat is a crop of temperate region and rice grown well in tropical region. Growing season is long in equatorial and tropical region as compared to the same in temperate region. It means crop growing season is long in equatorial region and tropical region, but it is short in temperate region. Next one is soil. Soil rich in minerals and organic matter supports agriculture. Chemical composition and fertility of soil differ from place to place, which leads to variation in soil type. It means chemical composition and fertility of soil also differ from place to place, which leads to variation in soil types. Each crop has its own requirement of soil. How we can say that each crop has a own requirement of soil? Such as, for example, black soil is comfortable for growing of cotton, red soil is for sugarcane, alluvial soil is for rice and loamy soil is for wheat. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आगे आप पढ़ेंगे जितने भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से हम एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टॉपिक में दिया हो टॉपिक को उठा के ही कॉपी पे लिख दो. कोशिश करेंगे कुछ ऐसा पॉइंट जो आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, खुद से आप कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं. अब ये नहीं कि नेट से कलेक्ट कर लो और 10-12 पॉइंट लिख दे जो कि अननेसेसरी हो. जो आपके टॉपिक से, जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, रेलेवेंट टॉपिक बार बार कहते हैं, जो रेलेवेंट होगा वो लिखेंगे. ठीक है, अननेसेसरी बहुत सारा चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज according to the soil type, a large variety of crops are grown in different part of the world. Alluvial soil and black soil are the most fertile soil for agriculture. यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, बट यहाँ पे हम अलग से पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. एलुवियल सॉइल राइस के लिए, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, रेड सॉइल सुगर केन एंड लोमी सॉइल व्हीट के लिए. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स. Size of land holdings. What is the meaning of size of land holding? It means the area of cultivable land. The size of farm affect the agriculture pattern and the yield per unit hectare. In the densely populated areas, the developing countries, the farm size is generally very small due to growing
रूरल पॉपुलेशन एंड द लॉ ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है। क्या? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फार्म साइज इज जनरली वेरी स्मॉल। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन डेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो एरिया क्या होगा, धीरे धीरे एरिया पॉपुलेशन के द्वारा कवर करता जाएंगे और वो एरिया जो कल्टिवेबल लैंड वाला एरिया है वो छोटा होता चला जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड वन इज लॉ ऑफ सक्सेशन। लॉ ऑफ सक्सेशन मतलब किसी के एरिया को सक्सेस कर लेना, किसी के एरिया को कब्जा कर लेना या फिर किसी के ज़मीन को खरीद लेना। इट लीड्स टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है डिवाइड करना, तोड़ देना या फिर डिसइंटीग्रेट कर देना। ऑब्वियस आता है, अगर आपके पास 4 हेक्टेयर लैंड है, अगर कोई आपसे 3 आदमी अगर कोई 1 हेक्टेयर ले लेता है तो आपका 4 हेक्टेयर लैंड क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो जो आप बिग साइज़ में बिग एरिया में एग्रीकल्चर कर सकते थे, अब वो एरिया आपका छोटा हो गया तो प्रोडक्शन भी कम होगा। बड़े एरिया में अगर हम करते हैं तो वही एरिया जो आप 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं वो 4 टाइम्स नहीं होके 5 टाइम्स होगा, क्योंकि आपको एरिया मिल रहा है। अब वो क्या हो गया? वो छोटा छोटा एरिया हो गया तो लैंड भी क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल। तो ऑब्वियस जो स्मॉल फील्ड होगा वो नॉट इकोनॉमिकल होगा या फिर वो मोस्टली इकोनॉमिकल नहीं होगा। इकोनॉमिकल कहने का मतलब कॉमर्शियल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज लेबर। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन। The availability of a labor has a great influence. It means some crops are demanding more and more labor. The labor requirement varies with different crops. In many part of India, seasonal unemployment exists in rural areas. कहता है इंडिया के मेनी पार्ट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैसे सीजनल? तो जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होगा तो उस समय लोग एम्प्लॉयड दिखेंगे। कहाँ? एग्रीकल्चरल लैंड में, कल्टिवेबल लैंड में या फार्मिंग लैंड में। बट जैसे ही हार्वेस्टिंग का समय ख़त्म होता है, जब सोइंग का सीज़न नहीं होगा तब, जब ग्रोइंग का सीज़न रहता है तब, तो ग्रोइंग के सीज़न में क्या होगा? पॉपुलेशन कम काम करता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पता चलता है कि हाँ अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। बट सोइंग के टाइम पे जब सीडिंग करते हैं, बीज बोते हैं, तब उस समय लोगों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, तो उस समय लोग एम्प्लॉयड दिखते हैं। दूसरा हार्वेस्टिंग के टाइम पे। बाकी ग्रोइंग सीज़न में पॉपुलेशन जो है या फिर जो पीपल है, लेबर है, वो एम्प्लॉयड नहीं दिखते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग में और हार्वेस्टिंग के टाइम पे देयर कुड बी शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर का शॉर्टेज होता है। क्यों? क्योंकि उस समय सारे लोग अपने अपने खेत में लगे होते हैं। द फार्मर्स ऑफ पंजाब जनरली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबर फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस। पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड होते हैं माइग्रेंट लेबर पे। किस चीज़ के लिए? ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए। क्योंकि जब उनको लेबर का ज़रूरत होता है तब उनको लेबर मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुद लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पे काम करने वाले लोग भी हैं, तो सारे लोग अपने अपने फार्मिंग लैंड में ही लगे होते हैं, तो उनको लेबर बाहर से हायर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक HYV सीड्स के लिए, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है, तो वेराइटी जब इसका थोड़ा सा अलग है, कॉस्टली होगा, जिसके लिए इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए? मीन्स ऑफ इरिगेशन सच एज जेट पम्प और पम्प सेट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हायरिंग लेबर, मशीन्स, लैंड लीज, fodder, fuel, power, veterinary services required capital. All these are required capital. First one is means of irrigation. इरीगेशन करने के लिए जो चाहिए वो फर्टिलाइज़र, जो फर्टाइल करता है ज़मीन को, फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट को मारता है, ज़मीन में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको जो किल करता है। हायरिंग लेबर हायर करना। मशीन्स एंड टूल्स। लैंड लीज, जो ज़मीन रेंट पे लेते हैं, कितने दिन के लिए? सिर्फ उस पर क्रॉप ग्रो करने के लिए, सीरियल्स ग्रो करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज फॉडर, जानवर को, जैसे जानवर से प्लगिंग करते हैं तो जानवर को खिलाने के लिए फॉडर चाहिए। नेक्स्ट इज फ्यूल, पावर किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पंप चलाने के लिए, जेट पंप चलाने के लिए या फिर पंप सेट चलाने के लिए पावर चाहिए। उस पावर के लिए या फिर ट्रैक्टर यूज़ करने के लिए फ्यूल चाहिए।
नेक्स्ट इज वेटरनरी सर्विसेज, अदर सर्विसेज के लिए क्या चाहिए, तो ये सारा सर्विसेज अडॉप्ट करने के लिए या सारा सर्विसेज अवेल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैपिटल। द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप यूजिंग न्यू टेक्निक, कमर्शियल क्रॉप में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो ऑब्वियस बात है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, मोर देन द रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन, जबकि ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन में कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में हम ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, हार्वेस्टर का, थ्रेशर्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट कमर्शियल क्रॉपिंग में ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ को चलाने के लिए, सारे मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, प्लगिंग करते हैं ऑक्स से, बैल से खेत को जोता जाता है या फिर हल से हम प्लगिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है मशीन का ज़रूरत नहीं होता है। बट ट्रैक्टर से अगर हम प्लगिंग करते हैं तो ट्रैक्टर के लिए फ्यूल चाहिए, फिर ट्रैक्टर चाहिए, उसको हायर करने के लिए कैपिटल चाहिए। दैट्स वाई मोर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड इन कमर्शियल क्रॉपिंग एज और रेदर देन ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज डू यू नो HYV, it stands for high yielding variety of seeds. These seeds can produce up to 10 times more than the regular seeds or the normal seeds on the same area of land or on the same piece of land. These seeds have shorter life cycle and enable the farmers to practice multiple cropping. The high yielding variety of seeds, especially for food grains crop, were developed by scientists basically to improve food supplies and reduce famine in developing countries. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। किस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का ज़रूरत होता है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता रहता है डे बाई डे, मतलब जो कंट्री ज़्यादा पॉपुलेशन वाला होगा वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का ज़रूरत होगा। क्यों? फूड शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, इट मीन्स फूड इंश्योर के लिए। नेक्स्ट इज रिड्यूस फेमाइन इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री में जो फेमाइन आता है, फेमाइन अकाल को कहते हैं जब फूड का शॉर्टेज हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज, द सिचुएशन इज नोन एज फेमाइन। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ड्यू टू वेरिंग environmental condition in the world, many patterns of agriculture have emerged. Basically, they depend upon the terrain. Terrain means area, climatic condition, temperature and rainfall, economical background, it means capital. Broadly, agriculture may be divided into two categories, that is subsistence agriculture and commercial agriculture. Subsistence is traditional old method and commercial is new technologies. Before we discuss them into detail, let us we have a look for the following classification. First, subsistence agriculture, second one is commercial. दोनों को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सबसिस्टेंस को नोमैडिक हर्डिंग, जानवर के साथ घूमना, या फिर जिनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, नोमैड कहते हैं। नोमैड क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, घूम घूम के अपना लाइफ को सस्टेन करते हैं। कभी एक जगह पे ज़मीन पे खेती करते हैं, फिर कभी वहाँ छोड़ के दूसरे जगह पे, तो उन्हीं के थ्रू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। एंड देन इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो एक्सटेंसिव होता है, या फिर मॉडर्न। नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन, प्लांटेशन करके एग्रीकल्चर किया जाता है। लाइव स्टॉक रैंचिंग, लाइव स्टॉक मीन्स कैटल, रैंचिंग मीन्स रियरिंग, कैटल रियरिंग, पशुपालन करना, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज डेयरी फार्मिंग। ये सारे को हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। लेट अस नाउ डिस्कस देम इन डिटेल। ये आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, इस वीडियो से आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सिंपल एग्रीकल्चर एंड ब्रॉड एग्रीकल्चर। इट मीन्स सिंपल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है। ओके, सिंपल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन,
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को और क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? ये 3 को छोड़ के ये 3 नहीं बताएंगे। और आप जो दोनों आंसर बताओगे वो दोनों आंसर आपके कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। जो वीडियो आप देखोगे वहाँ पे कमेंट में बताओगे अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल के साथ। ओके, यही आपके एक्टिविटी मार्क्स, इंटरनल मार्क्स को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो इंटरनल मार्क्स के लिए ज़रूरी है ये। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।